Now let us continue our last topic. Okay, and next lecture will start the next unit. Okay, that will be the probability. Okay. So now, one second. Okay, so the now the last topic is curve fitting. Okay, so here we actually calculate relationship between those two variable. Okay, and that relation may be a straight line. That relation may be a parabola. Okay. Uh, in our syllabus, we have a parabola of second degree and parabola of third degree. Okay, so these are the only possible relations that we need to discuss today. So many students are in waiting. Okay. So as a result of a certain experiment, suppose the values are okay, तो किस जो भी experiment आप perform करे थे, okay, like say time and temperature. I will take a simple example. Time and temperature. अगर आप experiment perform करते हो, then you will get this tabulated values. Okay, x is suppose your time and y is corresponding temperature. Okay, so so curve fitting is actually the process of constructing a curve which has a best fit to the above data. Our target is what? Our claim is what? We have to fit this data by a certain equation. So usually these curves or usually these equations straight line. Okay, yeah, these are the only equations in our syllabus, but there are so many equations. Okay, actually in general अगर आप देखते हो तो और भी बहुत सारे ऐसे equation है using which you can fit that data. But here in our syllabus, we'll actually fit this data using a straight line, parabola of second degree and parabola of third degree. Okay, so let me directly start with the first equation. अभी आपका obvious question क्या होगा कि आपको ये जो given data मतलब आपके पास ऐसे observations आने वाले हैं. So this is x variable, this is the y variable, and these are the observation corresponding to x, like say x1, x2, x3, and so on. And these are the observations corresponding to y, like say y1, y2, and yn up to yn, or you can continue this. Okay, so basically here we have to fit this data using a straight line. Okay, so that straight line is what? Y equal to x plus b. Okay, so how you do that? आपको इस डाटा को स्ट्रेट मीन्स व्हाट वी हैव टू फाइंड. एक्चुअली इसमें क्या कैलकुलेट करना है आपको? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन. ये जो गिवन डाटा है, ओके, वी हैव टू फिट दिस डाटा बाय अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज y इक्वल टू x प्लस b. मीन्स व्हाट? मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है? फिट करने के लिए यहाँ पे कौन से अननोन है? बेसिकली आपको क्या कैलकुलेट, आइडिया? आइडिया? यस, आपको अगर स्ट्रेट लाइन से फिट करना है, स्ट्रेट लाइन से अगर आपको इस डाटा को फिट करना है, तो फिट करने के लिए आपके पास अभी कौन से अननोन है? विच आर दी अननोन्स हियर? विच आर दी अननोन्स हियर? या क्या कैलकुलेट करना होगा जस्ट टू फिट दिस डाटा बाय स्ट्रेट लाइन? गेस तो करो, गेस तो करो. क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. दिस डाटा, मुझे ये डाटा फिट करना है. फिट करना है मतलब व्हेन आई पुट x इक्वल टू समथिंग यू विल गेट दैट y, है ना? जब आप x इक्वल टू x1 पुट करते हो आपको y1 मिलना चाहिए. जब आप x इक्वल टू x2 पुट करते हो आपको y2 मिलना चाहिए. जब आप x इक्वल टू x3 पुट करते हो आप. So here I want to fit this data by a straight line means what? मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? या which are the unknowns here? A and B. वेरी गुड, A and B. ओके, तो डाटा फिट करना है मतलब बेसिकली आपको A and B कैलकुलेट करना है. फाइंड अ पर्टिकुलर वैल्यूज फॉर A and B व्हिच एक्चुअली फिट दिस डाटा. फिट का मतलब अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है. जब आप x इक्वल टू x1 पुट करते हो यू मस्ट गेट x इक्वल टू x2, यू विल गेट y2 लाइक दिस. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको A and B को कैलकुलेट करना है. नाउ देयर आर टू अननोन्स.
A and B मतलब there are two unknowns. To find the value of two unknowns, you must generate two equation. फिर से रिपीट कर रहा हूं. So here there are two unknowns. आपका टारगेट क्या है कि आपको A and B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है which actually fit this given data, है ना. So since there are two unknowns, to find the value of this two unknown, you must generate two equation. आपको पता है 2x2 सिस्टम से आप दो अननोन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, है ना. when we have two unknowns, you have to generate the two equation corresponding to that unknown so that you can solve that system. Okay, that is nothing but 2x2 linear system. Okay, तो यहाँ पे आपको कैसे भी करके दो इक्वेशन क्रिएट करने. अभी इक्वेशन कैसे क्रिएट करने, okay, and those equations are actually called as normal equations. These equations are actually called as normal equations. So using normal equations, actually you will get the values of those unknowns. Okay, अभी क्रिएट कैसे करना है. So for that there are some steps. First step क्या है, टेक समेशन ऑन बोथ साइड. ऐसा कोई रूल नहीं है ये बुक में, बट मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूं. आपको पहले क्या करना है, ओके, समेशन लेना है दोनों साइड पे. कैसे होगा मैं आपको बोलता हूं. आफ्टर दैट मल्टीप्लाई दैट होल इक्वेशन बाय समेशन ऑफ एक्स. ओके, यू विल गेट दोस टू इक्वेशन. आगे जाके आपको किसी केसेस में यू नीड टू कंस्ट्रक्ट द थ्री इक्वेशन. आगे जाके एक ऐसा जैसे पैराबोला ऑफ सेकंड डिग्री एंड पैराबोला ऑफ थर्ड डिग्री. ओके, इस केस में आपके पास थ्री अननोन्स रहेंगे एंड फॉर दैट थ्री अननोन्स यू मस्ट जनरेट द थ्री इक्वेशन. तो उस केस में आपका जो थर्ड इक्वेशन होगा वो कैसे जनरेट होगा. इन दैट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थ्री केसेस, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला ऑफ सेकंड डिग्री एंड पैराबोला ऑफ थर्ड डिग्री. वो जो थर्ड इक्वेशन है वो कैसे जनरेट होगा, फिर से एक बार मल्टीप्लाई करना है. अगेन मल्टीप्लाई दैट बाय समेशन ऑफ एक्स. अब ये कैसे करना है ये आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला. लेट मी चेक इधर एनी वेटिंग. मेरी ट्यून कहां से आ रही है. ओके, हाँ, तो आई विल रिपीट अगेन, क्योंकि यही आइडिया सारे इक्वेशन में. तो मतलब आपको एक बार फर्स्ट इक्वेशन की थ्योरी समझ में आ गई ना, तो आगे कुछ नहीं है. मतलब ये इक्वेशन भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज यू नीड टू रिमेंबर द नॉर्मल इक्वेशंस. ओके, सो आई विल रिपीट अगेन. So actually here we have to fit this given data by a straight line. That is our target. ठीक है. तो ये मैंने इक्वेशन लिखा y equal to x plus b. But what I see here there are two unknowns. A and b are the unknowns. Basically we have to find the values of a and b. So for these two unknowns we have to generate two equation. तब जाके वो सिस्टम आपकी, या तब जाके आपके पास a and b के वैल्यूज आ जाएंगे. So you generate two equation. फर्स्ट स्टेप क्या है सारे केसेस में. योर फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, जस्ट टेक अ समेशन ऑन बोथ साइड. ओके, सो इफ आई टेक अ समेशन ऑन बोथ साइड, हियर यू विल गेट दैट फर्स्ट इक्वेशन टू बी summation of y is equal to, as a is the constant, that summation runs over only variables. So summation of x plus so here what is the value of summation of b. Suppose here consider the n variables. चलो फिक्स कर देता हूं n variable. So if I take a summation on both side, लेफ्ट साइड में summation of y आ जाएगा. यहाँ पे a कांस्टेंट है तो ये बाहर आके आपको a into summation of x मिल जाएगा. What is value of summation of b? Summation of b, I runs from 1 to n. Yes, अरे क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि नहीं मैंने क्या बोला है. आपको दोनों साइड पे समेशन लेना है. अभी एज्यूम करो आप देयर आर टोटल n ऑब्जर्वेशंस, x1 x2 up to xn, y1 y2 up to yn. So just take a summation on both side. Okay, so here you will get summation I runs from 1 to n of y. Here you will get summation I runs from 1 to n of, ये एक्चुअली xi है बट आप ये नोटेशन नहीं फॉलो करने वाले. तो यहाँ पे समेशन I runs from 1 to n, b की वैल्यू क्या होगी. हाँ, वेरी गुड, n into b, क्योंकि वो b कांस्टेंट है ना तो वो बाहर आने वाला है. ये भी आपका बाहर आने वाला है. समेशन ऑफ 1 where I runs from 1 to n, उसकी वैल्यू n होगी, मतलब 1 को n टाइम्स ऐड करना है. ठीक है, तो सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, बट जस्ट फॉर राइटिंग पर्पज ये आप नहीं लिखने वाले हो I runs from 1 to n yi. So just for writing purpose we write it as summation of y is equal to a summation of x plus n into b. Okay, ये समझ में आता है तो ही आपको ये फॉर्मूला याद मतलब करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज यू नीड टू रिमेंबर दिस ऑल फॉर्मूलाज. ठीक है, सो यू take the summation on both side. So summation equal to, as a is constant, so a into summation of x, and summation of b become that b is constant, so b you can take outside to that summation, and summation of 1 is actually n because total there are n observation that we need to assume. यहाँ पे मैंने ये लिखते समय ये assume किया है कि so suppose
देयर आर टोटल n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सारा फाइनाइट ही होगा, इनफाइनाइट ऑब्जर्वेशन नहीं रहेंगे. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय समेशन ऑफ x. सो दिस बिकम समेशन ऑफ एक्स वाई. अभी आप देखो ये कैसे कर रहा हूं, मतलब ये मल्टीप्लाई करना मतलब एक्चुअल आपका मल्टीप्लीकेशन ये. ओके, इसलिए मैंने बोला कि ये कोई रूल नहीं है, दिस इज नॉट द एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, बट आपको ऑलमोस्ट एक्स समेशन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि नाउ दिस आर डिफरेंट थिंग. मल्टीप्लाई करना मतलब आपका आंसर ये आ जाएगा, बट आपको लिखते समय इसको ऐसे लिखना है. दिस इज जस्ट अ वे टू कंस्ट्रक्ट वन मोर इक्वेशन. ठीक है, नथिंग एल्स. तो या हर एक वेरिएबल को आप समेशन से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि आप एक्स से मल्टीप्लाई करो. आई थिंक दैट इज मच बेटर. ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई करो, कैसे भी करके वो ट्रिक देनी है. सो समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. अब ये समेशन ही लेना होगा, नहीं तो फिर ये लास्ट स्टेटमेंट मैच नहीं करेगा. ठीक है, एंड हियर अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, सो दैट बी इज कांस्टेंट एंड एन की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स. ठीक है, ओके, मैं ये सेकंड स्टेटमेंट चेंज करने वाला, जस्ट गिव मी 1 मिनट सो दैट यू विल गेट अ प्रॉपर स्टेटमेंट. मुझे एक्चुअली क्या बोलना था यहाँ पे वो मैं लिख लेता हूँ. दिस इज नॉट द प्रॉपर लाइन. ओके, so what is your second equation? How you construct your second equation? Multiply given equation by x and then take summation. Repeat this. Okay, तो अगर आपको थर्ड इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है, रिपीट स्टेप 2 अगेन. आई होप नाउ दिस इज क्लियर. ठीक है, अभी ये फॉलो करते हैं. ठीक है, अभी ये फॉलो करते हैं. तो क्या करना है आपको, सेकंड इक्वेशन जनरेट करने के लिए इसको x से मल्टीप्लाई करना है. सो दैट गिव्स यू एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स. नाउ टेक द समेशन ऑन बोथ साइड. सो समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन ऑफ एक्स. नाउ दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, this is your first equation. Now just solve these two equation, you will get the values of a and b. कैसे, ये आपको मैं दिखाने वाला हूं बाद में. Is it clear? Any doubt in this part? Any doubt? कुछ डाउट्स है तो बोलो. या विल टेक वन मोर एग्जांपल. ठीक है, तो ये स्टेप्स आप याद रखो. अभी ये इनको मैं रिमूव कर देता हूं. पहले फर्स्ट इक्वेशन कैसे होता है, डायरेक्टली टेक अ समेशन. सेकंड इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करो देन टेक अ समेशन. थर्ड इक्वेशन कैसे मल्टीप्लाई करना है, अगेन मल्टीप्लाइड बाय एक्स, है ना. मतलब ये जो सेकंड इक्वेशन इसको एक और बार मतलब सिंपली एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो. दैट आल्सो यू कैन रिमेंबर. ठीक है, थर्ड स्टेप में एक्स से मल्टीप्लाई किया था, अभी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ओरिजिनल इक्वेशन को, देन यू कैन टेक अ समेशन. ओके, ऐसे भी आप याद रख सकते हो. ओके, तो अभी भी अगर आपको एक नहीं क्लियरली समझ में आ रहा है, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल. ओके, अभी आपको मुझे बोलना है व्हाट इज द नॉर्मल इक्वेशन फॉर दिस. अभी मैं थोड़ा चेंज करने वाला. इस केस में मुझे नॉर्मल इक्वेशंस कैलकुलेट करने. नॉर्मल इक्वेशन मींस वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ टू इक्वेशन बिकॉज देयर आर टू अननोन्स. सो कैन यू टेल मी दैट फर्स्ट इक्वेशन, एनीवन? व्हाट इज माय फर्स्ट इक्वेशन? ट्रिक. यस, ये करेक्ट है. सॉरी, ए summation y plus n into b. What is your second equation? तो अभी बार रोल रिवर्स है, तो आपको यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करना है. सो दिस बिकम b into summation of y. ठीक है, टू इक्वेशन यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b. ओके, ये आपको मैं एक्चुअल एग्जांपल से एक्सप्लेन करने वाला. राइट नाउ जस्ट रिमेंबर हाउ आई actually calculating this normal equations. Okay, so let me show you this thing. So these are the formulas. ये बुक में रेडीमेड है. ठीक है, डायरेक्टली उन्होंने दिया, बट ये जो फर्स्ट स्टेप है आपको कैसे मिल रही है, जस्ट बाय टेकिंग अ समेशन. ये कैसे मिल रही है, मल्टीप्लाई एक्स देन टेक समेशन देन समेशन. मतलब क्या होगा कि आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है. These are called as the normal equations. Okay, these are called as the normal equation. So
अगर आपको ये पता है, जस्ट बाय इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई यू विल गेट द नॉर्मल इक्वेशंस फॉर एक्स इक्वल टू ए वाई प्लस बी। ये आपको 1 मार्क के लिए एमसीक्यू में आने वाले, ये जो नॉर्मल इक्वेशन है वो, ठीक है। सो जस्ट बाय इंटरचेंजिंग x and y you will get the normal equations for x is equal to ay plus b, so that also I can show you, ठीक है। बस मैंने क्या किया, x and y का रोल चेंज किया, मतलब वही है जो अभी आपने खुद आंसर दिया था, so that is similar. Okay, so this is your first part. So here I have constructed the two equations corresponding to a straight line y equal to x plus b. Now using these two equation you can find the values of a and b, and that will be your final fit. Okay, and that is the fitting of a given data by a straight line. ठीक है। So we'll take some examples on this part also. तो हर एक part पे example लेने वाले। Now in a similar approach, now we have to construct the normal equations for the parabola of second degree. Simply a second degree polynomial. So parabola of second degree. Now can anyone tell me this? Tell me the first equation, second equation and third equation. अभी आपको ट्रिक पता है, पहले समेशन, फिर x से मल्टीप्लाई करके समेशन, फिर उसके बाद एक और बार x से मल्टीप्लाई करो समेशन। यस, एनीवन बोलो। ए, हाँ हाँ, NC. We have to assume that there are totally n number of observation. Now can you tell me second? Good. X cube plus b x, and एक और बार x से मल्टीप्लाई करना है, so that become x square y a summation x raised to 4 b summation x cube plus c summation x square, ठीक है। तो आई विल शो यू, देखते हैं कि करेक्ट है या कुछ मिस्टेक है। सॉरी, हाँ मैंने ओके वाई से करना नहीं, करेक्ट किया ना, हाँ करेक्ट है ना, यस ठीक है। सो समेशन ऑफ y देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय x, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय अगेन वन मतलब x स्क्वायर सिंपली, ओके। और यू कैन मल्टीप्लाई दिस सेकंड इक्वेशन बाय x, सिंपली इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो या सेकंड को एक और बार x से करो। एट द एंड ये होता है मल्टीप्लिकेशन बाय x स्क्वायर, ये होता है मल्टीप्लिकेशन बाय x, multiplication by 1, and then after that you have to just take a summation. Okay, so and just by interchanging x and y, you will get the normal equations for this. ये आपको MCQ में आने वाले हैं, ठीक है, तो वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, just you have to interchange your role of x and y and you will get these normal equations, ठीक है। Pick up pen again. You will get the normal equations. Okay. Now, और भी बहुत सारी इक्वेशन है। सेकंड आपका क्या है, पैरा फिटिंग, so this is not a second degree polynomial, this is okay, so this is a first degree equation, but थोड़ा फॉर्मेट अलग है, okay। इतना याद रखो, all first degree polynomial converted into straight line, and all second degree polynomial straight line मतलब इसमें कन्वर्ट करना है x प्लस सी, सारे सेकंड डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, अभी जो मैंने लिख के दिया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सारे सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री का भी मैं आपको दिखाता हूं। ओके, सो तो पहले तो आपको इसको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही फॉर्मूला स्टार्ट करो, बिकॉज अगर आप इमीडिएटली इस पे फॉर्मूला परफॉर्म करोगे क्या प्रॉब्लम होगी, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस, व्हाई आई कैन नॉट डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस इक्वेशन, एनी आइडिया? वेरी गुड, बिकॉज देर आर 3 वेरिएबल्स, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, बिकॉज देर आर 3 वेरिएबल, अगर मैं इस पे डायरेक्टली ऑपरेट करता हूं ना तो मुझे 3 इक्वेशन को जनरेट करना होगा, बट आपको मैंने क्या बोला है कि फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल के लिए यू हैव टू जनरेट ओनली 2 इक्वेशन, दैट इज द लॉजिक ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पहले आप इसको क्या करो, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करो, ठीक है। सो दिस बिकम dy इज इक्वल टू
minus ax plus c. So that is nothing but y is equal to minus a upon b x, correct, plus c by b. Now, just for writing purpose, if you want, consider this value as capital A, and you can consider this value as capital B. So now you can see there are only two unknowns. अभी आपको आपका regular formula use करना है. Take a summation, then it become a into summation of x plus n into b, and after that you can multiply it by x. So that will become a into summation of x square plus b into summation of x. And these are your normal equation corresponding to this. ये भी आपको MCQ में आने वाले. Okay, so I will show you this. यहाँ पे बस मैंने वही किया है, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया, देन डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया. सो अगर आपको ये माइनस ए बाई बी से कंफ्यूजन हो रहा है, देन यू कैन रिप्लेस दिस वैल्यू बाय कैपिटल ए. इफ यू वांट यू कैन रिप्लेस दिस बाय कैपिटल ए, एंड सी बाय बी यू कैन रिप्लेस बाय कैपिटल बी. ठीक है. नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, जस्ट टेक अ समेशन, एंड सेकंड इक्वेशन इज जस्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्स. ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्स. दिस आर योर नॉर्मल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस. ये भी एमसीक्यू में है आपको. ओके, now what about this? Let me just increase the volume. मैंने ऊपर हिंट तो दिया आपको. नाउ दिस इज इस इक्वेशन को भी आपको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है. ये मैं बोल रहा हूं. कैसे करोगे? एनी आइडिया? हाउ यू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू अ स्ट्रेट लाइन? क्योंकि आपको कम इक्वेशन रहेंगे ना, उतना आपके लिए इजी होगा. अगर आप जितने ज्यादा इक्वेशन जनरेट करोगे, उतना वो कैलकुलेशन में टाइम लेने वाला. ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैलकुलेशन में कितना टाइम जाने वाला है आपका इसमें. ठीक है. हाँ, यस, एनीवन? कुछ तो लॉग लेंगे. हाँ, वी कैन टेक अ लॉग ऑन बोथ साइड. सो आई विल शो दैट प्रूफ. सो इफ आई टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दिस बिकम, तो यहाँ पे जो लॉग आपको यूज करना है ना, वो लॉग टू द बेस 10 का यूज करना है. ये आप याद रखो, यही एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे लॉग टू द बेस 10 आपको यूज करना है. अदरवाइज सारे टॉपिक में हमने ln यूज किया है. ln, लॉग टू द बेस e. लॉग टू द बेस e मींस ln. ठीक है. सो इन दिस टॉपिक ओनली यू हैव टू यूज लॉग टू द बेस 10. रीजन आपको बाद में समझ में आएगा. सो लॉग टू द बेस, या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आपको ऑनलाइन में भी रहेगा. तो इसलिए आई कैनॉट चेंज दिस. Okay, but it is not depend on this log to the base 10. We can use ln also, but MCQs में जो सारे आंसर्स है वो log to the base 10 के फॉर्मेट में ही है, तो इसलिए वही रखता हूँ. तो which is equal to log to the base 10 of a into x raised to b. बट आपको पता है log of a into b का फॉर्मूला क्या है? log of a into b is log a plus log b. बट log की प्रॉपर्टी क्या है? ये जो पावर का नंबर है इसको आप आगे लेके आ सकते हो. So which is equal to log to the base 10 a plus b log to the base 10, sorry, log to the base 10 x, and this is log to the base 10 y. ठीक है. Now just for writing purpose, here I denote this value by capital Y, here I denote this value by capital X, and here I denote this value by capital C. So now this can be written as y is equal to ax, so bx plus capital C. ठीक है. So it become an equation of straight line. This is the equation of straight line. Means there are only two unknowns. तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको सॉल्व करो by calculating the normal equations. That is summation of capital Y is equal to b summation of capital X plus n into C. Can you tell me the second equation? Anyone? Second equation के लिए कैपिटल X से मल्टीप्लाई करना है या स्मॉल x से मल्टीप्लाई करना है? हाँ, कैपिटल X या स्मॉल x? कैपिटल X. कैपिटल X, क्योंकि ये इस इक्वेशन के लिए चल रहा है. दिस इज ओनली फॉर दिस इक्वेशन. सो मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल X. सो कैपिटल X y equal to b summation capital X square C summation capital X. Okay, so and now okay, so just solve this two equation. कैसे करना है ये आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला. ठीक है. Just solve this equation, you will get the value of b and you will get the value of capital C. ठीक है. बट आपको क्या चाहिए था? आपको a की वैल्यू चाहिए थी और b की वैल्यू चाहिए. b की आपको मिल चुकी है.
ओके, सो दिस इज ओवर, बट आपको ए कैलकुलेट करना होगा। ए और कैपिटल सी में क्या रिलेशन है? दिस कैपिटल सी इज इक्वल टू log to the base 10 a. Now can anyone tell me from this relation what is value of small a? हाँ, 10 raised to c, सबको पता ही है क्लियरली? ओके, ये आप याद रखो। ओके, a इज इक्वल टू कैसे? कैसे? मे भी कुछ तो कुछ आगे नहीं पता होगा। ये कैसे मिला है? एंटी लॉग लेके, ठीक है। सो व्हाट इज द इजीएस्ट प्रूफ? ओके, ये एंटी लॉग से भी डायरेक्टली तो दिखाई दे रहा है, बट ये प्रूफ ही देना है। सो आई कैन गिव दिस एज log e to the base a अपॉन log, देखता हूँ मैं ये कैसे हो रहा है, 10, then this come on left hand side, so c is equal to c log e to the base is equal to log e a, ठीक है। ये c 10 के पावर में जाएगा, you can cancel this log on both side, you will get a equal to 10 raised to c, okay। या ये प्रूफ है रफली, ज्यादा इसमें नहीं जाने वाला हूं मैं, okay। if you want you can refer this, या आप डायरेक्टली ये याद रखो, this is just by taking anti log या log to the base 10 a equal to c का एंटी लॉग, जब आप दोनों साइड पे एंटी लॉग लेते हो you will get 10 raised to c, a equal to 10 raised to c। ये रिलेशन यूज करके आपको a की वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। तो ये भी सब कुछ है यहाँ पे, तो just take a log on both side, just for writing purpose denote these values, we have small c से denote किया, let it be, you will get this normal equation, सबको पता ही है, ठीक है। These are your normal equation and from this you have to calculate b and c, but b आपको समझ में आ गया, a कैलकुलेट करने के लिए आपको ये रिलेशन यूज करना है। 10 raised to c is the value of a, ठीक है। एक सिमिलर टाइप का एक और प्रॉब्लम है a b raised to x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, अगेन यू हैव टू टेक अ log on both side, so log 10 y is equal to log 10 a plus log 10 b raised to x, that x you can take that x you can take here, so x into log to the base 10 into b, okay। log की प्रॉपर्टी, जो पावर का नंबर है वो आगे आ जाता है आपका, and now you can denote this thing by capital Y, this thing by some क्या notation दिया है मैंने, c दिया है, you can give any notation which you want, and this thing by some other constant, say b, it look like capital Y is equal to, this is b x plus c, ठीक है। तो यहाँ पे x वेरिएबल आपका x ही है, बट y वेरिएबल आपका कैपिटल Y में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे x वेरिएबल आपका x के फॉर्म में ही है, बट y वेरिएबल आपका कैपिटल Y में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अभी दिस इज जस्ट फॉर योर इंट्रोडक्शन, ये इसके ऊपर ज्यादा कुछ एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है। नाउ यू हैव टू जस्ट यूज द नॉर्मल इक्वेशंस, है ना, समेशन ऑफ y। अभी यहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? कैपिटल x तो यहाँ पे है ही नहीं, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय स्मॉल x, दैट चेंज यू हैव टू रिमेंबर। दिस इज योर नॉर्मल इक्वेशन। तो यहाँ से आपको कैपिटल बी मिल जाएगा, यहाँ से आपको स्मॉल सी मिल जाएगा, और आपको क्या चाहिए? स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो क्या रिलेशन है इसमें? जो ए की वैल्यू है वो 10 raised to c और बी की वैल्यू जो 10 raised to b, ठीक है। ये चीजें आप याद रखो। यहाँ से बी कैसे कैलकुलेट होता है? 10 raised to b। यहाँ से ए कैसे कैलकुलेट होता है? 10 raised to c। रिमेंबर दिस स्मॉल थिंग्स, ठीक है। नाउ इट्स बेटर टू टेक डायरेक्टली सम एमसीक्यूज, तो ही आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या एक्सप्लेन किया है, जो भी गिवन डाटा है उसको आपको फिट करना है, ओके। मे बी दैट इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन, मे बी दैट इक्वेशन इज पैराबोला ऑफ सेकंड डिग्री, और मे बी इट इज सम अदर फॉर्मेट जो मैंने आपसे एक्सप्लेन किए थे, ओके। y इक्वल टू x रेज टू b, x प्लस by इक्वल टू c, सो रैंडम फॉर्मेट्स आर देयर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, डिग्री 1 है तो सारे इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करो, डिग्री 2 है तो सारे इक्वेशन को वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, ठीक है। सो विल टेक सम एग्जांपल डायरेक्टली, आपको खुद आंसर देना है। सो फॉर अ लिस्ट स्क्वायर फिट, दिस इज नथिंग बट अ कर्व फिटिंग, a straight line x is equal to ay plus b with n points, the normal equations, बोलो हो चुका है, tell me the normal equations, yes, which option is correct? पहला क्या होता है? फर्स्ट क्या होता है? just take a summation, so summation of x, a summation of y,
n इंटू बी। सेकंड में क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, y से। लेफ्ट साइड में x है तो y से मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट साइड में y है तो x से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाइड बाय y, a summation y square plus b summation y. So which option is correct? Which option is correct? xy is equal to a square b summation y. I think b है ना, ठीक है। Is it clear or not? Tell me yes or no. सेकंड, अभी ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है, तो पहले आप इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करो। y इज इक्वल टू, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो माइनस ए अपॉन बी एक्स प्लस सी अपॉन बी। नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट टेक अ समेशन देन मल्टीप्लाइड बाय x, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? अभी आप याद रखो लेफ्ट साइड में एक्स वाई आने वाला है, एक्स वाई आने वाला, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, इन दोनों में से होगा। नाउ टेल मी which option is correct, A or D? Just take a summation na, summation y is equal to minus a by b summation of x plus n into this d। अभी आपको यही क्वेश्चन आने वाला है, तो ज्यादा कुछ आप मतलब जितना मैंने लिया है दैट इज फ्रॉम अ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, बट इतना कुछ नहीं है आपको डीप में, सो डोंट वरी। नाउ अभी देखो, अभी उस क्वेश्चन का मतलब वो नॉर्मल इक्वेशन कंसीडर करके आगे कैसे जा रहा है, दैट आई नीड टू एक्सप्लेन हियर। ओके, सो y इक्वल टू एक्स प्लस बी से आपको इस यहाँ पे फिट करना है। ओके, तो अभी मैं दोनों अप्रोच से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, आप देखो कि आपको कौन सा अप्रोच फॉलो करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक अदर ट्रिक भी है, आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो ना, कौन सा ऐसा इक्वेशन है जहाँ पे ये डाटा आपका फिट हो रहा है। मीन्स व्हाट, मीन्स व्हाट, व्हेन आई पुट x इक्वल टू 1 यू मस्ट गेट y इक्वल टू 5। कहाँ पे मिल रहा है ऐसा? व्हेन आई पुट x इक्वल टू 1, यहाँ पे अगर आप x इक्वल टू 1 पुट करते हो 4 प्लस 2 6, ये करेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पे 2 माइनस 3 नहीं होगा, यहाँ पे अरे ये हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? C. सी। ये तो मतलब जितना आपने लर्न किया उसका यूज होता ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाता है। एक्चुअली यहाँ पे क्या करना है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। सो हियर यू हैव टू फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द नॉर्मल इक्वेशंस, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशंस क्या है? समेशन ऑफ y इज इक्वल टू a समेशन ऑफ x प्लस n into b, and your second equation is multiplied by x, so summation of xy is equal to a summation of x square प्लस b into summation of x। इसलिए मैं आपको पहले बोला था कि ये टॉपिक सबसे ट्रिवियल है, क्योंकि इसमें थ्योरी का कुछ यूज होता ही नहीं, डायरेक्टली आप अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हो। नाउ जस्ट टेल मी दिस वैल्यूज क्विकली। बोलो, summation of y, what is this addition? complete this equation, summation of y कैलकुलेट करो, y की एडिशन, x की एडिशन, यानी n की वैल्यू 3 है, टोटल देर आर 3 ऑब्जर्वेशन, समेशन ऑफ xy की एडिशन, a into x square करके एडिशन, एंड b into summation of x। डू इट क्विकली, करो जल्दी, कैलकुलेट द नॉर्मल इक्वेशन एंड टेल मी द नॉर्मल इक्वेशन। एवरीवन प्लीज डू इट, do it quickly। बोलो, समेशन ऑफ y की वैल्यू क्या है? व्हाट इज समेशन ऑफ y? करेक्ट, 21 is equal to a summation of x 3 plus 2 5 plus 1 6 प्लस n की वैल्यू क्या है 3 इंटू बी। नेक्स्ट समेशन ऑफ एक्स वाई, कोई तो मुझे बोलो ये क्या है? डू इट, टेल मी दिस वैल्यू। एक्स वाई मतलब पता है 5 इंटू 1 5 प्लस देन 7 इंटू 2 14 प्लस देन 9 इंटू 3 27। बोलो क्या आता है ये? तो इट इज 46 e समेशन एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर मतलब तीनों स्क्वायर के एडिशन, 1 स्क्वायर इज 1, करेक्ट, 2 स्क्वायर इज 4, then 3 square is 9, so what is that addition?
करेक्ट, प्लस बी समेशन ऑफ एक्स आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है यहाँ पे 6, 3 + 2 5 6 ना, सो दिस कैन बी रिटन एज 6a plus 3b equal to 21, 14a plus 6b is equal to 46. Calcium में solve करो and tell me the values of a and tell me the value of b. Solve this part on calculator and tell me the value of a and value of b. बोलो 2 and 3 मैच हो गया, ठीक है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अभी आप देखो कि आपको इतना सब कुछ करके जाना है या बस डायरेक्टली देखना है कि कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर ठीक है, देखते हैं अभी जब वो क्वेश्चन आएगा तभी वो प्रॉब्लम में अराइज करता है, ठीक है। ओके, नाउ ऑनवर्ड्स यू हैव टू टेल मी द आंसर्स। ओके, इसका क्या था, लेट मी टिक दैट ऑप्शन, सो इन रिकॉर्डिंग यू कैन चेक। नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट, x equal to ay plus b, x equal to ay plus b. So when I put y equal to 1, when I put y equal to 1, you must get x is equal to -1. ऐसा कौन सा इक्वेशन है? When I put y equal to 1, यहाँ पे पुट करता हूँ नहीं आता है, यहाँ पे पुट करता हूँ नहीं आता है, यहाँ पे पुट करता हूँ नहीं आता है, और यहाँ पे पुट करता हूँ तो -1 मिलता है, तो दिस मस्ट बी द करेक्ट आंसर। ओके, इफ यू वांट टू चेक यू कैन यूज दैट थियरी पार्ट, ठीक है, वो भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। इज इट ओके? यस सर, ऑल ओके। हाँ ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्यों आप उतना सब कुछ सॉल्व करोगे, ठीक है। नाउ टेल मी दिस, अभी आप खुद बोलो, मुझे डायरेक्टली आंसर चाहिए, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, यू कैन वर्क ऑन दिस, टेल मी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। आप अपने हिसाब से देखो कि x की वैल्यू 0 पुट किया, y की वैल्यू -4/3 पुट अगर आप करते हो, वो कौन सा इक्वेशन वो सेटिस्फाई कर रहा है। सारे इक्वेशन में इक्वल टू 4 है, तो इक्वल टू 4 कहाँ पे आता है? ये ऑप्शन पे आता है। माइनस का क्या करोगे, माइनस साइन है ना, ऑप्शन बी। सारी चीजें आप चेक करो, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि -4/3 अगर डी या बी है, so this is wrong, this is wrong, ठीक है। इसलिए अच्छे से वर्कआउट करो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, इट्स बेटर टू चेक ऑल दिस वैल्यूज, इट्स बेटर टू चेक ऑल दिस वैल्यूज, जल्दबाजी मत करो, नहीं तो बस इतना ट्रिवियल काम था उसमें भी आप मार्क्स लॉस करोगे। कर सकते हो ना, कोई भी रैंडम वैल्यू, कोई भी रैंडम वैल्यू, बस इतना देखना है कि बाकी सारे ऑप्शन डिलीट होने चाहिए, दैट यू हैव टू मेक श्योर। अगर बाकी सारे ऑप्शन डिलीट हो रहे हैं तो आपने जो भी सिलेक्ट किया वो करेक्ट होगा। कभी कभी हो सकता है मे बी फर्स्ट वैल्यू के लिए सारे ऑप्शन आपके मैच हो जाएंगे, सेकंड वैल्यू के लिए भी मैच हो जाएंगे, किसी एक वैल्यू के लिए मैच नहीं होंगे, ये भी चांसेस है, नहीं होगा ऐसा कुछ, बट ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ओके, नाउ टेल मी अबाउट दिस। अभी यहाँ पे डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर नॉर्मल इक्वेशन लेके जाना है, तो यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन का पार्ट है, सो समेशन ऑफ y is equal to a summation of x plus n into b. Next equation is summation of xy, a summation of x square plus b summation of x. पहले फर्स्ट इक्वेशन कैलकुलेट करो आप और मुझे बोलो क्या है, फिर मैच करके देखते हैं। अगर फर्स्ट मैच हो रहा है, अभी आप देखो सारे, ओके यहाँ पे फर्स्ट मैच हो रहा है, ठीक है ठीक है, बोलो बोलो फर्स्ट का बोलो, समेशन ऑफ y 12 is equal to a summation of x 9 ना, and ये 3 into b, ये 9a plus 3b equal to 12, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो बाकी तो 2 डिलीट हो गए, नहीं ना, ये भी यहाँ पे भी आ रहा है, तो सेकंड कैलकुलेट करना होगा, सेकंड का बोलो x into y, इट्स बेटर डायरेक्टली कैलकुलेट b का कोएफिशिएंट कैलकुलेट करो सेकंड में, तो b का कोएफिशिएंट क्या है, वो 9 ही है ना, समेशन ऑफ x, तो यही करेक्ट है, यस। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड कैलकुलेट करो, ठीक है ऐसे बोलो, सेकंड समेशन ऑफ एक्स वाई क्या है, टेल मी व्हाट इज समेशन ऑफ एक्स वाई,
बोलो बोलो जल्दी। 2 प्लस क्या, क्या आ रहा है? इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड बी इंटू समेशन ऑफ एक्स, क्या है, 9 ही है। Okay, तो यही से मैं बोल रहा था कि बी का कोएफिशिएंट 9 है ना, तो बी का कोएफिशिएंट 9 एक ही जगह पे आ रहा है, सो दिस ऑप्शन, ये मैं डायरेक्ट बोल रहा था आपको, इससे भी जा सकते थे आप, नो नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। ठीक है, सो यू कैन डिलीट ऑल द रिमेनिंग ऑप्शंस। ठीक है, ओके, व्हाट अबाउट दिस? अब ये सॉल्व नहीं करना बिकॉज इट टेक्स टाइम, ये इसमें तो ज्यादा टाइम जाता है, डायरेक्टली वर्कआउट करके बोलो विच ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये रॉन्ग है शायद, यहाँ पे ना ये x चाहिए, ये y चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स का है। अभी बोलो, टेक इट एज x, टेक इट एज y, बोलो विच ऑप्शन इज करेक्ट। But when I put x is equal to 1, you must get y equal to 2. When I put x equal to 2, you must get y equal to 16. कहाँ पे मिलेगा? Which option is correct? ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? अभी तो ले लेता हूँ, देन आई विल डायरेक्टली जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका एक बोल दो। When I put y equal to 2, you must get x equal to 8. y equal to 2, ये पुट करके x की वैल्यू 8 आनी चाहिए ना, ये रिवर्स है, मतलब x कैलकुलेट करना है ना, x इक्वल टू मतलब x कैलकुलेट करना है। कौन सा करेक्ट है बोलो? सी करेक्ट है, सी। फोर का क्यूब क्या है? नेक्स्ट वैल्यू भी चेक करो आप। हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि डोंट जस्ट चेक द फर्स्ट, इट गिव्स यू द रॉन्ग आंसर। फर्स्ट मैच हो रहा था, अभी फर्स्ट यहाँ पे भी मैच हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट से जज मत करो, इट्स बेटर टू चेक सेकंड एंड थर्ड वैल्यू, उसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, बट एटलीस्ट यू विल गेट द करेक्ट आंसर। डोंट जस्ट चेक द फर्स्ट वैल्यू, एग्जाम में तो गलती से भी मत करो। ठीक है, या सो दिस इज जस्ट द नॉर्मल इक्वेशन फाइंडिंग क्वेश्चन है ये। अभी आपको पता है लेफ्ट साइड में क्या क्या आने वाला है, एक बार समेशन ऑफ एक्स, एक बार समेशन ऑफ एक्स वाई, एक बार समेशन ऑफ एक्स से तो वाई से मल्टीप्लाई करना है ना, एक्स वाई स्क्वायर। ये कहाँ पे मैच कर रहा है? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, एक्स वाई स्क्वायर ये मैच हो रहा है, ये है क्या? ये भी नहीं है, हो गया। ओके, तो बस एक लेफ्ट साइड से भी मैंने क्रॉस वेरीफाई किया। ठीक है, नाउ ओके, लेट मी चेक कितने क्वेश्चंस रिमेनिंग है। मैं कंटिन्यू देखता हूँ कितने क्वेश्चन है। ये सिमिलर टाइप के ही है, 2-3 क्वेश्चंस आर देयर। ओके, कंटिन्यू और स्टॉप करना है? बोलो जल्दी, कंटिन्यू करो, हार्डली 2-3 मिनट्स में हो जाएगा ये। इट्स बेटर टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। साइड बाय साइड यू कैन पुट योर रोल नंबर इन द चैट बॉक्स फॉर द अटेंडेंस। या सो हार्डली इट विल टेक अराउंड 2 मिनट्स। ओके, बोलो। अभी यहाँ पे ना डिलीट करने के लिए पहले देखो कि क्या वर्कआउट करना है। ठीक है, हाँ, अभी लेफ्ट साइड में क्या क्या आने वाला है, समेशन ऑफ एक्स आने वाला है। अभी समेशन ऑफ एक्स यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 है, ये ओके। तो आई थिंक जस्ट फ्रॉम एलएचएस तो ये दोनों ज्यादा क्लोज है। ठीक है, तो इसमें कुछ लॉजिक नहीं है ये कैलकुलेट करने में, डिफरेंट डिफरेंट कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, ए का कोएफिशिएंट कैलकुलेट करता हूँ। तो फर्स्ट जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप अपने हिसाब से ट्रिक यूज करो। मतलब मेरा क्या कहना है कि जितना कम टाइम में होना होता है वो आपको देखना है, एन इन टू सी। ओके, सो बोलो ए का कोएफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में क्या आने वाला है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर करके ऐड करो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 1। बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
विच ऑप्शन इज करेक्ट? अभी यहाँ पे 14 है ना, यहाँ पे भी 14 है, बट आपको इसको जज करने के लिए बस आपको क्या देखना है, समेशन ऑफ एक्स। समेशन ऑफ एक्स क्या है, इसके एडिशन आप चेक करो। अभी ये जीरो तो कभी नहीं आने वाली, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ये हर एक क्वेश्चन में ये ट्रिक अलग अलग होगी। आपको क्या देखना है कि कहां से, ऐसे कौन से अराउंड 1 और 2 वैल्यूज है जहां से मैं डायरेक्टली ऑप्शन को टिक कर सकता हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको फिर क्या करना होगा, तीनों इक्वेशन को लिखना होगा, 1 बाय 1 चेक करके जाना होगा, बट दैट टेक्स टाइम, या उसमें कुछ फायदा होगा नहीं आपको। आपको बस देखना है कि कॉन्ट्रडिक्शन लेके आ सकता हो। तो मैंने पहले ये चेक किया कि ये अलग अलग दिखाई दे रहा है ज्यादातर केस में, और ये इन दोनों का ही मैंने सेटअप रखा था। ठीक है, क्योंकि ये हर एक इक्वेशन में अलग अलग है, तो यहाँ से मुझे समझ में आ जाता है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। यही सारे टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन इज ट्रिवियल, क्योंकि इसमें सारी चीजें रेडीमेड है। मैं पहला इक्वेशन अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ, समेशन ऑफ y इज a इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू समेशन ऑफ x, यानी कि वैल्यू क्या है 3, सो 3 इंटू सी, सारे वैल्यूज पुट करो। समेशन ऑफ y क्या गिवन है, इट इज 13, a इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या गिवन है, इट इज 5 प्लस b इंटू समेशन ऑफ x क्या गिवन है 3, 3 इंटू सी। अभी देखो यहां से समझ में आ रहा है कुछ, ये कैलकुलेट करने में नहीं आएगा शायद। 13 इज इक्वल टू 5a, 13 13 सब में 13 है, 5a प्लस 3b, 5a प्लस 3b सब में है, आई थिंक सब में ही है। फर्स्ट इक्वेशन से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, टू गो फॉर द सेकंड इक्वेशन, दैट इज समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस b समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस c समेशन ऑफ x। नाउ पुट द वैल्यू, समेशन ऑफ xy क्या था 15, 15 इज इक्वल टू a समेशन ऑफ x क्यूब क्या है, x क्यूब इज 9, b समेशन ऑफ x स्क्वायर क्या है 5 प्लस c समेशन ऑफ x क्या है 3। अभी देखते हैं, 9a 5b 3c इक्वल टू 15। ओके, सो इट्स बेटर टू डायरेक्टली चेक दैट लास्ट वैल्यू। लास्ट में क्या होगा, एक और बार x से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई। तो एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या है 27। सो 27 कहाँ पे आ रहा है, राइट साइड में। यही ऑप्शन करेक्ट है क्या, या इसमें भी कंफ्यूजन है? ये मैच कर रहा था क्या, 9a 5b 3c 5a 3b 3c? अरे इन्होंने ज्यादा ही क्लोज दिया। वर्कआउट करो और बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सारी चीजें कैलकुलेट करनी, कुछ फायदा नहीं। यस, बोलो विच ऑप्शन इज करेक्ट। a इंटू समेशन ऑफ एक्स रेस टू 4, ये का कोएफिशिएंट समेशन ऑफ एक्स रेस टू 4 होगा, दैट इज 17। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, आप अपने हिसाब से वर्कआउट करो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बेटर वे क्या था, विच मतलब डायरेक्ट अगर आपको जाना था तो कौन सा ऑप्शन बेटर था यहाँ पे? कैन यू टेल मी ट्रिक टू कैलकुलेट दिस, एनीवन? ट्रिक क्या थी यहाँ पे, आप तीनों इक्वेशन लिखो और आपको दिखाई दे रहा है कि दो इक्वेशन सब में मैच हो रहे हैं ना, डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन कैलकुलेट करो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ये तीनों इक्वेशन लिखो पहले जल्द क्विकली, वो लिखना इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक से मल्टीप्लाई करना है, एक और बार एक से मल्टीप्लाई करना है, तीनों इक्वेशन लिखो, डायरेक्टली कैलकुलेट थर्ड इक्वेशन, तब आपको समझ में आएगा विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट विल सेव योर टाइम। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा देखना होगा कि अरे दोनों इक्वेशन सब में मैच हो रहे हैं, तो मुझे डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन पे फोकस करना, तो डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन ही कैलकुलेट करो। ठीक है, I think with this, it's a similar question. Similar question is there. Stop today. It's trivial topic है, इसमें theory का और question का कुछ ज्यादा relation नहीं है, so that 100% saves your time. हाँ, X and Y. Okay. Other students, you have to just put your roll number in chat box and then you can leave. Huh? Because I think you have next lecture. Okay. Question number. कौन सा था question number? नाही ना, इथे कशाला करायला? What is the normal equation of this? इसका नॉर्मल इक्वेशन क्या है? इसका पहले डायरेक्टली समेशन लेना है,
n इंटू सी, फिर उसके बाद x से मल्टीप्लाई करना है, एक और बार x से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे वो कहाँ पे करना पड़ता है, y इक्वल टू एक्स, यहाँ पे एक्स एंड वाई का रोल चेंज करना पड़ता है, पर वो उसके ऊपर क्वेश्चन है ही नहीं, या वो आप डायरेक्टली ऑप्शन देख के ही चेक करते हैं। अगर इसके ऊपर नॉर्मली क्वेश्चन आता है उस केस में आपको वो करना होगा जो भी आप बोल रहे हो, इसमें नहीं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, यहाँ और कुछ डाउट था आपका? तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पे डायरेक्टली आप करना है, और ये सारे वैल्यूज गिवन है, मतलब ये जो कैलकुलेशन करना है ना, सारी चीजें आपके पास रेडीमेड है। ओके, अगर इस केस, क्योंकि आपको ये भी आने वाला है इसके ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि यही सारे क्वेश्चन नहीं है आपको फाइनल एग्जाम में, तो इस केस में अगर आपको नॉर्मली क्वेश्चन कैलकुलेट करना है तो वो चेंज हो जाता है, ये लॉग आ जाता है, तो लॉग वाई को आप कैपिटल वाई बोलते हो, तो वो चेंज होगा इन केस ऑफ दिस, तो वो भी नॉर्मल इक्वेशन आपको एग्जाम में आने वाले हैं 100%। एनी अदर डाउट देन यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। सर उद्या सुट्टी आहे का? शायद छुट्टी है, ओके 100%, बट स्टिल मुझे भी एक बार डिपार्टमेंट से कंफर्म करना होगा। फर्स्ट ईयर के लिए तो हॉलीडे है, सो मे बी सेकेंड ईयर के लिए भी होगा, 99% होगा, बट स्टिल वी नीड टू कंफर्म दिस फ्रॉम योर क्लास टीचर। आणि सर पीएल केव्हापासून सुरू होणार आहे? क्या क्या पीएल प्रिपरेशन लीव. प्रिपरेशन लीव आपको क्या बोला है, क्योंकि अभी क्या होता है कि डिपार्टमेंट के डिसीजन में शायद मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बट प्रिपरेशन लीव मिलने वाली है आपको जितना मैंने सुना, बट यू हैव टू कंफर्म एवरीथिंग फ्रॉम योर क्लास टीचर, दैट इज द बेटर, बट मिलेगी आपको, डोंट वरी। सर टेंटेटिव्ह काही माहिती आहे का तुम्हाला सर पीएलच्या अबाउट? हे बघा, जास्त काही तुमची एक्झाम कधीपासून मला सांगा पटकन, 4 ते 8 आहे का? 4 मे ते 8 मे. हा, तर दिली तर एखाद्या लास्ट वीक पासून देतील, ते पण म्हणजे पुढचं शेड्यूल काय आहे तर त्यावर पण डिपेंड राहील. ओके, कारण जसं मला समजतंय ना, तुमच्याकडे हा एक मंथ आहे बरोबर, तुमच्याकडे किंवा या सेमिस्टर 2च्या फॅकल्टीकडे, नेक्स्ट मध्ये जर तुमच्या आता एंड सेमिस्टर एक्झाम झाली आहे ना, त्याच्यानंतर जर इमिजिएटली युनिव्हर्सिटीने इन सेमिस्टर एक्झाम डिक्लेअर केली सेमिस्टर 2ची, तर तुम्हाला खूप प्रॉब्लेम होणार आहे. मग तुमचा हा सिलेबस कव्हर कधी करायचा, हा एक प्रॉब्लेम आहे की जो सगळ्यांच्या माइंडमध्ये आहे. म्हणून आपण काय प्रयत्न करतोय की जेवढा ठीक आहे चांगल्या वेळेने जेवढा आता कम्प्लीट करून घेतला आपण करूया, की जेणेकरून तुम्हाला तुमची एकदा एक्झाम चालू झाले ना, मग तुम्हाला परत इकडे डायव्हर्ट करायला थोडा प्रॉब्लेम होईल. म्हणजे भेटलं तरी माझ्या मते अराउंड 1 मंथ तरी भेटायला पाहिजे तुम्हाला इन बिटवीन दी एक्झाम्स ऑफ सेमिस्टर 1 अँड सेमिस्टर 2, तर त्याच्यामुळे थोडासा प्रॉब्लेम असू शकतो. तरी तुम्ही जास्तीत जास्त एखादा लास्ट वीक कन्सिडर करा, नसेल तर तुम्ही रिक्वेस्ट करू शकता, असंही काय नाही, अदर डिपार्टमेंटला भेटेल तसं भेटलं पाहिजे असं काय नाही, यू कॅन रिक्वेस्ट टू द क्लास टीचर, वी नीड एटलीस्ट दैट 1 लास्ट वीक फॉर द प्रिपरेशन, बट आप ये पहले कन्वे करो तो कुछ ना कुछ तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा. ओके, बट आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो आपको ज्यादा फोकस करना है, दैट इज उसमें कुछ ये नहीं है, या उसको आप सेकेंडरी चॉइस पे नहीं डाल सकते हो, यू हैव टू प्रिपेयर, और ज्यादा से ज्यादा आपको वहां पे मार्क्स लेने, क्योंकि इसमें आपका रिजल्ट इंक्रीज नहीं होगा, सारे स्टूडेंट का रिजल्ट इंक्रीज होने वाला है, इट्स नॉट अ थियरी एग्जाम. ओके, तो मतलब ऐसा होगा नहीं अभी कि 50 में से अगर आपको 30 मिले तो अच्छे मार्क्स है, ठीक है, आपके साथ अराउंड 70% स्टूडेंट को 30 मिल जाएंगे, ठीक है, तो ये मतलब नाउ यू हैव टू फाइट फॉर दैट आउट ऑफ स्कोर, इसलिए आप वो दिमाग में रखो, डोंट जस्ट कंपेयर विद योर थियरी मार्क्स. नाउ दिस पैटर्न इज टोटली डिफरेंट, योर एक्चुअल पैटर्न इज डिफरेंट, तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना होगा इसमें. 30-31 का अगर आप टारगेट रखोगे ना, सो आपको दिखने में वो स्कोर अच्छा दिखाई देगा, बट इफ यू कंपेयर विद द अदर स्टूडेंट तो फिर आप वैसे भी लास्ट में रहोगे. Now you can join for your next lecture. हॅलो सर. बोलो 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 बोलो. सर प्रेझेंट टाईप केली बघा आता मी, प्रेझेंट चॅट बॉक्स मध्ये आता लेट नेटवर्क नसल्यामुळे आले 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 आले.
ओके सर.